Now we will see the next topic, selection. We have seen the recruitment in which the candidates are searched from the different institutions and they are motivated and stimulated to apply for the job in the organization. After the recruitment, the next step is selection. After searching of the candidates, a lot of candidates apply for the job in an enterprise, and then searching and sorting out of the right candidate is done in the process of selection. So we can say that the selection is the process of identifying, choosing the best person out of the number of candidates who have applied for the job in the enterprise. And in order to select the suitable person or the best person out of the number of prospectives, different type of tests are conducted by the enterprise, and that test and interview have to be passed by that candidate. So a few candidates who have applied for the job moves towards the next stage and others are get eliminated. तो हमने भर्ती की प्रक्रिया देखी थी, जहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदक होता था उससे ढूंढा जाता था और उससे प्रोत्साहित किया जाता था कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। जब भर्ती की प्रक्रिया में खूब सारे कैंडिडेट और आवेदक आ जाते हैं और एंटरप्राइज में कार्य के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद एंटरप्राइज और इकाई का जो दूसरा चरण होता है वो होता है उन सारे कैंडिडेट्स में से, उन सारे आवेदकों में से सही का चयन करना। तो एकदम सही उम्मीदवार का चयन करना वो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट और अलग अलग परीक्षाएं और अलग अलग साक्षात्कार वो एक एंटरप्राइज रखती है, और सारे जितने भी कैंडिडेट और आवेदक जिन्होंने अप्लाई करा है उनको वो टेस्ट और साक्षात्कार को क्या करना पड़ता है, परीक्षाओं को पास करना पड़ता है। जो उस परीक्षाओं को पास कर लेते हैं वो अगली परीक्षा के चरण में जाते हैं और बाकी जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ये थी भर्ती के बाद की प्रक्रिया, सिलेक्शन, चयन। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। So the process of selection start with the first step of preliminary screening. In the preliminary screening, the application forms and the resume submitted by the applicants who are interested in doing the job in the enterprise are get sorted out. Those applications that meets the criteria and condition of the enterprise are kept and others applications are eliminated. After scrutinizing and sorting of the applications forms and resume, the next step is the selection test. Different type of tests are conducted by the enterprise in order to know more about the candidate and candidate knowledge. For example, interest test, for example, aptitude test, for example, personality test. All this test reveals more knowledge and intelligence level of the employee. Like personality test reveals about the personality aspect of the employee. Interest test reveal about the interest pattern of the employee. Aptitude test reveals about the grabbing capacity of the candidate, the capacity to learn the new skills and knowledge. All this test helps the enterprise to identify the best out of so many prospective candidates. Now the next step in the selection process are the employment interviews. Employment interviews are conducted with the higher authorities in the enterprise. They are face-to-face question and answering rounds with the higher authorities, in which the higher authorities of the enterprise ask some question and information to the prospective candidates. Interviews are conducted in order to reveal more information about the candidate that cannot be revealed in the different tests or in the above steps. Next step is reference and background checking. The information which are filled by the applicant in the application form or which are given by the candidate are then verified by the institution. So in order to verify that information, enterprise always asks for some references. References may be any previous employer of the candidate or any known relatives, friend. The next step is making the final selection decision. Final selection decision is mainly made by the top management.
but the manager under which the new candidate gonna work, that manager's view and opinion are also considered by the top management, because that manager will be responsible for the performance of the newly joined candidate. After the final selection, the candidate goes through the medical examination. In the medical examination, the medical condition of the employees is checked. So in order to know whether the candidate is medically healthy or not, because the health affects the work. And also to protect the other employees from any type of communicable disease, the medical examination of each employee is important. In the next step, a job offer letter is given to the candidate who is selected by the enterprise. That job letter contains the date on which the prospective candidate have to report to the enterprise. If he is interested in doing the work with the enterprise, then he signs that job letter and reports on the particular date that is mentioned in the job letter. After the job letter, the next step is the contract of employment. Once the candidate gives the job letter to the enterprise and join the enterprises, then he is given a contract of employment. In the contract of employment, more terms and condition and detail of the employment are mentioned, which the employee goes through, and if he accept it, then he sign it. The contract of employment contains the information like date of joining, terms and condition, rules and regulation of the enterprise, policies of the enterprise, the terms of remuneration, allowances और extra incentives. तो चयन की प्रक्रिया में पे जो पहला चरण था वो है प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच के अंदर आवेदन पत्र जो आवेदकों द्वारा भरे जाते हैं उनकी जो है छटनी की जाती है। जो भी एंटरप्राइज के या व्यावसायिक इकाई के कंडीशन को पूरा करते हैं उन्हें रखा जाता है और बाकी सबको क्या है हटा दिया जाता है। इसके बाद दूसरी स्टेप होती है चयन परीक्षण। इसके अंदर अलग अलग टाइप की परीक्षा जो है वो ली जाती है। जो आवेदक होते हैं उनसे अलग अलग परीक्षाएं ली जाती है, जैसे कि बुद्धि की परीक्षा, जैसे कि उनकी पर्सनैलिटी की परीक्षा, उनके जो है रुचि की परीक्षा। इससे जो होता है उनका जो बुद्धि, उनकी जो स्किल्स है, उनकी कुशलता और उनका जो भी उनकी जिसमें भी रुचि है उसका जो लेवल है उसके बारे में सूचना मिल जाती है। तीसरा जो चरण होता है वो होता है रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होता है वह आमने सामने लिया जाता है और ज़्यादातर ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। जो भी प्रबंधक जिसके अंडर जो है आवेदक को आगे जाके कार्य करना है उनका भी जो है राय ली जाती है, उनका भी सजेशन लिया जाता है, क्योंकि जो फ्यूचर में जो भी आवेदक कार्य करेगा तो उसके लिए ज़िम्मेदार वो प्रबंधक होगा। तो जो है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा साक्षात्कार लिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच करना, क्योंकि जो भी आवेदन पत्र में जो भी जानकारी आवेदक ने भरी है वो सत्य है या नहीं है, इसकी जांच की जाती है इस स्टेप के अंदर। और संदर्भ के रूप में जो है आवेदक को कहा जाता है कि उन्हें जो है मोबाइल नंबर और जानकारी लिखनी उन लोगों की जो लोग उन्हें जानते हैं। अब ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, या उनके जो है पहले वाले एम्प्लॉयर, पहले वाले नियोक्ता भी हो सकते हैं। इन 4 स्टेप के बाद जो 5वीं स्टेप आती है वो होती है चयन का निर्णय। फाइनल डिसीजन लेना होता है कि अब किसे चयनित किया जाए। जो लोग प्रारंभिक जांच, परीक्षा को और साक्षात्कार को पार कर लेते हैं और जिनके संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच भी अच्छे से हो जाती है, उसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए आवेदक होते हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ का चयन करना जो होता है वो इस स्टेप में किया जाता है। यहाँ फाइनल डिसीजन लिया जाता है और फाइनल डिसीजन में हर डिपार्टमेंट का और मैनेजर जिसके अंडर आवेदक को आगे जाके कार्य करना होता है उनकी राय भी ली जाती है। इसके बाद जो स्टेप होती है वो चिकित्सा परीक्षण की होती है। एक बार आवेदक अगर चयनित हो जाता है, चयन का जो निर्णय है वो फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद उसे गुजरना होता है चिकित्सा परीक्षा से। चिकित्सा परीक्षा का उद्देश्य ये होता है कि ये पता करना होता है कि जो आवेदक है वो कितना हेल्दी है, क्योंकि उसकी हेल्थ
उसकी हेल्थ अफेक्ट करेगी, उसके कार्य को। और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जो कर्मचारी पहले से ही एंटरप्राइज में, इकाई में कार्य कर रहे हैं, उनकी जो है सुरक्षा हो जाए ऐसी कोई भी बीमारी से जो कि फैलने वाली होती है। तो कोई भी ऐसा बंदा या ऐसा आवेदक जो किसी ऐसी डिजीज़ से गुजर रहा है जो फैल सकती है, तो ऐसे आवेदकों की जांच इस चिकित्सा परीक्षण में हो जाती है। इसके बाद होता है नौकरी का प्रस्ताव। जो आवेदक होता है उसे एक लेटर दिया जाता है जिसमें उसकी मर्ज़ी पूछी जाती है कि वो कार्य करना चाहता है या नहीं चाहता है, और अगर वो कार्य करना चाहता है तो वो सिग्नेचर करे, और साथ में डेट दी जाती है कि किस डेट पे, किस दिनांक को उसको जो है व्यावसायिक इकाई को ज्वाइन करना है। तो अगर वो इंटरेस्टेड होता है, उसकी रुचि होती है कार्य करने के लिए एंटरप्राइज के साथ, इकाई के साथ, तो वो उस प्रस्ताव पे साइन करके सहमति प्रदान करता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है रोजगार अनुबंध। रोजगार अनुबंध जो है वो प्रस्ताव में तो सिर्फ जो है दिनांक दी जाती है और छोटी मोटी बातें दी जाती है जो कि एक आवेदक को ज्वाइन करने के लिए होती है। लेकिन अगर एक बार नौकरी के प्रस्ताव पे वो स्वीकृति प्रदान कर देता है तो उसको रोजगार का अनुबंध दिया जाता है। रोजगार का अनुबंध जो होता है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल्स होती है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि किस दिनांक को जो है आवेदक ने इकाई को ज्वाइन किया है और किस दिनांक को उसकी नियुक्ति हुई है, और जो भी है क्या नियम कानून है व्यावसायिक इकाई के, क्या उसकी ड्यूटी होगी, क्या उसके दायित्व होंगे, और क्या क्या इंसेंटिव्स उसे मिलेंगे, उसकी जो है उसका वेतन कितना होगा, उसके अलावेंसेस कितने होंगे, और उसको क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ और सुविधाएं प्रदान की जाएगी इकाई द्वारा। नियम कानून नीतियाँ सभी जो होता है वो इस रोजगार अनुबंध में होता है, जिसे स्वीकृति प्रदान करने के बाद जो होता है चयन की प्रक्रिया फाइनल हो जाती है और वो कैंडिडेट, वो आवेदक क्या हो जाता है, कंप्लीटली चयनित हो जाता है, फाइनली चयनित हो जाता है।